Good morning, dear students. As yesterday we have started with the new chapter, that is solid state. So, in which I have told you about the classification of solids as crystalline and amorphous solid. So today we will continue with the classification of crystalline solid, that is of four types: ionic, covalent, metallic and molecular solids. So as in the crystalline solids, we have studied that the constituent particles are arranged in a regular pattern. So in the similar manner, in these crystalline solids, the constituent particles are different and they are being arranged in a regular manner. So in ionic solids, if we are talking about the ionic solids, so ionic solid is having the constituent particles as cations and anions as per its name. So we have to study it in the manner by which we can see the difference between all, and we can study separately also. So ionic solid में constituent particles are cations and anions, while in covalent solid the constituent particles are atoms. ठीक है, नाम से भी पता चल रहा है हमें आयनिक में क्या है, आयंस आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कोवेलेंट सॉलिड में एटम्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द मेटालिक सॉलिड वी आर हैविंग कर्नेल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एज अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. सो व्हाट आर कर्नेल्स? दे आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस. ठीक है, तो मेटालिक सॉलिड्स में क्या होते हैं, कर्नेल्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बनाते हैं. While in case of molecular solid, as per its name, the molecules are the constituent particles. So here these four types of crystalline solids are there, in which the crystalline solids are different. Now next point, in case of solids, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात की, there is a strong molecular force, intermolecular force of attraction exists between them. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि चारों टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है. सो इन आयनिक सॉलिड, जैसे कि हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, दैट बिटवीन द आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स. सो हियर वी आर हैविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इन कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स वी आर हैविंग कोवेलेंट बॉन्डिंग. जो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स होते हैं बेसिकली हमें किस केस में देखने के लिए मिलते हैं, नॉन मेटल्स के केस में, और उनके बीच में हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग काम करता है. दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नाउ इन द मेटालिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स में बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कर्नेल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके बीच में मेटालिक बॉन्डिंग वुड बी देयर. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा दैट इज बिटवीन द कैटायंस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, sea of electrons surrounded these positively charged ions in a regular pattern or manner. So metallic bonding works between them. What about in molecular solids? Molecular solids में हमारे पास basically three kind of molecular solids are there. ठीक है, तीन कौन कौन से होते हैं, that is non-polar molecular solids, polar molecular solids and hydrogen bonded molecular solids. थ्री पार्ट्स में आप molecular solids को सब डिवाइड कर सकते हो, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड. नॉन पोलर में जैसे हम लोग देखें तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है. इन द सिमिलर मैनर आर्गन, क्रिप्टन, नियॉन, दीज आर इनर्ट गैसेस, दैट इज नॉन पोलर molecular solids. ठीक है, पोलर में देखते हैं तो सपोज HCl we are talking about, ammonia we are talking about, these are the polar molecular solid, and hydrogen bonded molecular solids are as HF, water. Okay, these are the hydrogen bonded molecular solid. तो इन तीनों ही केसेस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वुड बी डिफरेंट. ठीक है, जैसे कि नॉन पोलर molecular solid में the force of attraction would be the London force or the dispersion force. इन फोर्सेस को हम लोग 11th क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो नॉन पोलर सॉलिड में
लंडन फोर्स काम करता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में, क्योंकि यहाँ पर डाइपोल्स फॉर्म हो जाते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्टिव फोर्सेस काम करती हैं। और जो तीसरा तरीके का है हाइड्रोजन बॉन्डेड, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है जैसे कि HF या फिर आपका वाटर, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड फॉर्म होता है। सो बेसिकली हम यहाँ क्या देख रहे हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लंडन फोर्स सबसे ज्यादा वीक है, तो ये बेसिकली कैसे होते हैं, ये जो हैं वो गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो हमारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है बेसिकली एट द रूम टेम्परेचर दे एग्जिस्ट एज अ लिक्विड और अ गैस, और जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो लो टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर किसकी तरह एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड की तरह या फिर सॉफ्ट सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो दीज आर 3 टाइप्स, तो यहाँ 3 तरीके के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नाउ नेक्स्ट वन इज द फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर अगर हम आयनिक सॉलिड की बात करें तो दे आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। सो व्हाट अबाउट हार्ड, व्हाई आर दे हार्ड? बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि NaCl, Na आयन और Cl आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स बहुत पास हैं, दैट्स व्हाई दे आर हार्ड इन नेचर। एंड नाउ व्हाट अबाउट ब्रिटल, दे आर आल्सो ब्रिटल। ये कैसे होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं। ऐसा क्यों होता है, जैसे ही हम इन बॉन्ड्स को डीफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, व्हाट विल हैपन, अपोजिटली चार्ज आयन, ठीक है, सॉरी लाइक आयंस, अपोजिटली चार्ज नहीं, सेम चार्ज आयन एक दूसरे के पास आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से ये क्या हो जाता है, जो हमारी लेटिस होती है, जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, वो शैटर हो जाता है, इसलिए दे आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। नाउ व्हाट अबाउट कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स या कोवेलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो दे आर अगेन हार्ड इन नेचर, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग इज देयर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, इसलिए ये कैसे होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटेलिक सॉलिड की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर हार्ड तो होते हैं, बट जैसे कि मेटल का नेचर है हम जानते हैं, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर। द नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रही है, इसलिए ये कैसे होते हैं, जनरली दे आर सॉफ्ट इन नेचर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हार्डनेस की, तो कोवेलेंटली बॉन्डेड जितने भी हैं हार्ड होते हैं, बट ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन क्यों है और बाकी सारे हार्ड क्यों हैं, इस पे एक पॉइंट बन जाता है आपका एग्जाम में, क्योंकि अगर हम डायमंड का स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली ये किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक कार्बन अगले 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एक जो है केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाते हैं ये। ठीक है, इस वजह से कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं नेचर में। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। लेयर्ड, कुछ लेयर इस तरीके का लेयर स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, तो ये लेयर्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है वो कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करती। और अगर हम ध्यान से देखें तो एक कार्बन अगले 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है सिर्फ। ठीक है, एक पर्टिकुलर कार्बन अगले 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से एक वैलेंसी फ्री होती है। ठीक है, एक वैलेंसी फ्री होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ग्रेफाइट। वाइल जो अदर एग्जांपल्स हैं कोवेलेंटली बॉन्डेड यानी कोवेलेंट सॉलिड्स के, वो कैसे होते हैं, दे आर इंसुलेटर इन नेचर, दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और लेयर स्ट्रक्चर होने की वजह से, और यहाँ पर इन लेयर्स के बीच में ऐसी कई लेयर्स होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करती, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स बिटवीन देम, तो दे स्लिप ओवर ईच अदर, दैट्स व्हाई दे आर सॉफ्ट। तो ग्रेफाइट कैसा होता है, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, दैट इज सॉफ्ट, while other are hard in nature। ठीक है, अगर अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, वेरी हाई हो गया।
यहाँ पर भी हम देख रहे हैं लार्ज स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है हमारी, जैसे कि डायमंड हो गया या सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, ठीक है। तो ये कैसा होता है, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेटेलिक बॉन्ड्स है, यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटेलिक बॉन्डिंग है आयंस और नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इसलिए यहाँ पर भी हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क बिटवीन दैट। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट हमें देखने के लिए मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स, ठीक है, इन सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इन द सॉलिड स्टेट दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, वहां पर आयंस को मूव करने के लिए ही जगह नहीं है, ठीक है। तो दे डोंट मूव, दैट्स व्हाई दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयंस मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम मॉल्टेन स्टेट की बात कर रहे हैं, यानी हमने इसको मेल्ट कर लिया, तो इन मॉल्टेन स्टेट दे कैन मूव and that's why they can conduct electricity due to the presence of ions, ठीक है। अब covalently bonded अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो दे आर इंसुलेटर, क्योंकि वहां कोई आयन नहीं है मूव करने के लिए, इवन दो नो इलेक्ट्रॉन इज देयर। एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, दैट्स व्हाई इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Now what about the metallic conductors, metallic solids? They are the good conductors of electricity. We all know well. The reason being is ये जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, क्या reason है हमारे यहाँ पर कि they are having the kernels having positive charge and number of valence free electrons are there to conduct electricity. And molecular solid की बात करें हम तो they are insulators, क्योंकि वहाँ पर molecules हैं and they don't conduct electricity due to the absence of ion or electrons. Now the next point is enthalpy of fusion. As in the last lecture I have told you कि enthalpy of fusion is nothing but the melting point to convert a solid into liquid at a particular temperature and pressure. So as melting point is very high, that's why fusion is also very high. Here in the case it is high, while in metallic solids it is moderate, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, मॉडरेट होता है, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होता, लो भी नहीं होता। एंड इन द मॉलिक्यूलर सॉलिड दैट इज वेरी लो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स, तो यहाँ पर जो भी आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दीज आर द आयनिक सॉलिड्स। कोवैलेंट सॉलिड्स की बात करें तो डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड एंड क्वार्ट्ज यानी SiO2, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्रिस्टलाइन फॉर्म है इसकी, क्रिस्टलाइज होकर क्वार्ट्ज बनाता है SiO2, जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज रहता है ना। मेटलिक सॉलिड्स जो हैं हमारे, जैसे कि हम नंबर ऑफ मेटल्स एग्जांपल में दे सकते हैं, इसमें नॉन मेटल्स हैं, इसमें मेटल्स हैं, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, दीज आर द मेटलिक सॉलिड्स। एंड इन द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वी आर हैविंग as solid carbon dioxide, iodine, naphthalene, etc. So that is about the classification of crystalline solid. So dear students, that is the theoretical part basically in the chapter, और थोड़ा सा जाके लास्ट में, जो कि अब तो कट हो गया है आपके सिलेबस से, बट इसके आगे हम बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का, जिसके लिए आपको अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन इज नीडेड, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका इमेजिनेशन अच्छा होगा उतना आसानी से आप चैप्टर को इजीली समझ पाएंगे, साथ साथ एग्जाम के लिए तैयार कर पाएंगे। सो कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।